वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड क्वेश्चन नंबर 2791, काउंट पार्ट्स दैट कैन फॉर्म अ पैलिंड्रोम इन अ ट्री। गाइस, मैंने बहुत सारे ट्री और ग्राफ के क्वेश्चन किए हैं लीड कोड पे, लीड कोड हार्ड भी किए हैं, बट आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट tree/graph question. Very conceptual question, and this is not a lead code hard. This is, guys, ultra hard. And क्या ही doable है इंटरव्यू में? फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई डोंट थिंक सो, बट दिस इज़ कॉन्सेप्चुअली सच अ गुड क्वेश्चन। आपको इसमें कम से कम 5-6 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो बहुत सारे लीड कोड मीडियम क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, एंड देयर फोर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which I would rate it as a very conceptual and important question. But from the interview perspective, I don't think so this can be asked. तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। हमें एक ट्री दिया हुआ है which is an connected undirected graph which has no cycle. So we already know कि any graph which is connected, undirected and acyclic, that is also a tree, which is rooted at node 0 consisting of n nodes numbered from 0 to n minus 1. The tree is represented by a zero indexed array parent of size n. तो हर नोड का पेरेंट दिया हुआ है, तो इसमें नोड्स कितनी है? 0 1 2 3 4 5. सो वी हैव 6 नोड्स एंड हमें 6 साइज का ही पेरेंट एरे दिया हुआ इन द इनपुट, वेयर every ith index will have the parent in the parent array. So 0th node, which is the root itself, it does not have a parent, and therefore it is -1, so you can ignore the parent because it is the root. Then the first index has a root, has a parent which is root, which is 0. The second also has 0 as the parent, 3 has 1 as the parent, 4 has 1 as the parent, and 5 has 2 as the parent, which is represented in parent vector. Now you're also given an s. So what s is? You're also given a string s of length n, where si is the character assigned to the edge between I and parent I. तो 0 a c 1 2 3 4 5 6, तो पहले वाले को आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद 1 टू पेरेंट ऑफ 1 विच इज़ 0, तो 1 to 0 के बीच में एज में c है, फिर 2 और 0 के बीच में a है, 3 और 1 के बीच में फिर a है, 4 और 1 के बीच में b है, 5 और 2 के बीच में c है। ठीक है। Return the number of pairs of nodes u to v such that u is less than v and the characters assigned to the edges on the path from u to v can be rearranged to form a palindrome. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आता है दैट इज़ कि हमें बोला हुआ है कि हमें वो पाथ जो बनेगा दैट हैज़ टू बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ पैलिंड्रोम. The first concept that comes here is, when can a string be arranged to form a palindrome? When every character has either all even frequencies तो अरेंज करने के बाद पैलिंड्रोम बन जाएगा, और at most one odd frequency. फॉर एग्जाम्पल, अगर सारी इवन है, लेट्स से ए बी है, बी बी है, तो बी की फ्रीक्वेंसी इज 2, ए की फ्रीक्वेंसी इज 2. तो दिस कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म अ पैलिंड्रोम ए बी बी. दिस इज अ पैलिंड्रोम. बट if there is at most one odd frequency, let's say a b b c was there, so this c will become the middle element a b b. So we can always arrange even size characters in two directions in the mirror way, like mirror रिफ्लेक्शन वे. एंड अगर एटमोस्ट एक भी ऐसा करेक्टर होगा जो ऑड फ्रीक्वेंसी वाला है, तो वो मिडिल करेक्टर बन जाएगा, एंड वो भी एक पॉसिबल पैलिंड्रोमिक अरेंजमेंट बना देगा. बट क्या एक से ज़्यादा ऑड फ्रीक्वेंसी वाले अलाउड हैं? नो, बिकॉज लेट्स से इट ऑल्सो हैड अ डी, दिस विल नेवर एवर फॉर्म अ पैलिंड्रोम, बिकॉज ओनली वन, at most one odd frequency wala letter is allowed, which is C here or D here. We cannot have more than one, it will never form a palindrome. So this is the first concept. Next, let's say a string is a palindrome when it reads the same backwards and forward. So we are given 0 1 2 3 4 and 5. हमें वो सारे combinations बताने हैं u to v. u is any node and v is also any node, all the possible pairs where the path will rearrange to form a palindrome.
and here there is a condition that u should be less than v to include that in the path. अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि यहाँ पे a और सारे पाथ्स की वैल्यू भी देख लेते हैं. तो दिस इज c a b c. तो लेट्स से दैट we have the path from 3 to 5. What is the path from 3 to 5? 3 is this and 5 is this. So 3 और 5 के पाथ निकालने के लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ LCA. अगर हमें कभी भी दो नोड्स के बीच में पाथ निकालना होता है ट्री में, तो हम फर्स्ट फिगर आउट करते हैं उन दोनों नोड्स का LCA. जो भी LCA होता है, लोवेस्ट कॉमन इंसेस्टर, तो हम U से LCA तक का पाथ निकाल देते हैं, V से LCA तक का पाथ निकाल देते हैं और उनको कर देते हैं अपेंड. तो ऐसे बनता है पाथ. तो ये जो हमें ट्री दिया हुआ था 0 1 2 3 4 5, हमें निकालना था 3 और 5 दो नोड्स के बीच में पाथ. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फिगर आउट द LCA. तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है. तो LCA कैसे निकलेगा, 3 और 5 का LCA निकालना हमें ऑफ एन में रिकर्सिवली बहुत ईजिली आता है. तो LCA इसका आ जाएगा 0, है ना, 0 आ जाएगा विच इज़ द रूट इटसेल्फ. तो हम क्या करेंगे, पहले 0 to 3 का रूट पाथ निकाल लेंगे, फिर हम 0 to 5 का पाथ निकाल लेंगे, दोनों को अपेंड कर देंगे, तो आ जाएगा 3 to 5 का रूट पाथ विच इज़ A. द ट्री वॉज CA, the tree was CACBC. तो it was CAABC. तो 3 to 0 का पाथ इज AC and 0 to 5 का पाथ इज AC, and here this forms 8 दो बार आ रहा है, C दो बार आ रहा है, तो this is an even length palindrome. This is a palindrome. तो 3 to 5 is a possible pair. तो हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है. तो पहला कॉन्सेप्ट था कि कब रीअरेंज करके बनेगी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, व्हेन इट इज either all even frequency letters या at most one odd frequency letter. This was the first concept and this is the second concept which is अगर दो नोड्स के बीच में हमें कभी भी पाथ निकालना है तो we will always figure out the LCA and then we will divide it into two problems. Find the path from LCA to 3 and find the path from LCA to V. LCA to U and LCA to V. अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि क्या LCA जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसके अंदर LCA इज ऑलवेज द, मैं दोबारा उस ग्राफ को बनाती हूँ, 0 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ पे LCA ऑफ 3 and 5 वॉज रूट इटसेल्फ, ठीक है. बट कैन LCA ऑलवेज बी द रूट? ऑब्वियसली नॉट. LCA विल नॉट ऑलवेज बी द रूट, इट विल बी द लोएस्ट कॉमन इंसेस्टर. तो अगर दोनों सेम ट्री में आ गए, इफ बोथ आर ऑन द लेफ्ट साइड, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द रूट. It can be any other node also. So LCA is not always going to be the root, it can be any other node also. Sorry guys, ये glitch हो रहा है. I will open my free form again. Yes, my pencil is not working. 1 second guys. तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि LCA सिर्फ तब होगा जब हमारा U node and V node are in different subtrees of the root. If they are in the same subtrees of the root, then it is not going to be the LCA. So here this is going to be the LCA. This root was the LCA for 3 and 5. बट अगर वो सेम सब ट्री में हो गए तो वो LCA नहीं होगा. जैसे 3 and 4 का अगर हम पाथ देखें तो ये हो गया 3 और 5, तो दिस इज इन द सेम ट्री, सेम साइड ऑफ द रूट, तो LCA इसका 1 हो जाएगा. तो द LCA इज 1 हियर, राइट. तो 1 to 3 का पाथ एंड 1 to 4 का पाथ को अपेंड करके हमें 3 to 4 का पाथ मिल जाएगा. अब गाइज आप देखो कि अगर हम हर बार हर नोड के लिए LCA निकालेंगे, U to V पेयर निकालेंगे, ठीक है, तो n नोड्स हैं, 2 पेयर निकालने का NC2, उसके बाद हर नोड का निकालेंगे LCA, तो दिस इज़ वेरी ह्यूज कॉम्प्लेक्सिटी. सो दिस इज़ n स्क्वायर इंटू n क्यूब हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. दिस इज़ ह्यूज. तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा LCA नहीं निकालना. दिस इज़ अ बॉटलनेक. हमें इसको ऑप्टिमाइज़ करना है. कैसे करेंगे ऑप्टिमाइज? सो वी डोंट ऑलवेज नीड द LCA बिकॉज LCA यहाँ पे हार्ड कोड रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर हम LCA की जगह कॉमन ग्राउंड में हमेशा रूट ले लेंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इसके 3 केसेस मैं आपको दिखाती हूँ. फर्स्ट कि व्हाट इफ़ द LCA वॉज द रूट. अगर LCA रूट था, ठीक है, 3 और 5 वाला केस है, 3 और 5 वाला केस है. अगर LCA वॉज द रूट इटसेल्फ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम ले लेंगे, दिस वॉज CA ले लेंगे, दिस वॉज ऑल्सो CA, दिस वॉज B,
और ये ले लेंगे, ठीक है। तो सी आ गया and this is also a palindrome, right? It worked. So if the LCA was the root, obviously this the path from the root to 3, the path from the root to 5 will work. But even if the LCA is on the left side or the right side, this is going to work because let me show you. So we have 0, 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, this is C, A, B, C. Even if the LCA was 1 in case of 3 and 4, taking the path from the root is going to work. Taking the path from the root is going to work. We don't have to compute the LCA again and again, which is O of n computation. Because let's say actually the path was AB, है ना? The path from 3 to 4 was AB, but what if we consider from the root itself? So the path will be, if we consider from the root, it will be AC and CB. C has already come twice, so because even if we don't consider the LCA but take it from the root, the path from LCA to root will come twice, once in the path of u and once in the path of v, and therefore it will come even number of times, and any character which is even number of times in the arrangement will not affect the conviction that whether this is a palindrome or not, because even number of times is going to nullify. ठीक है, क्योंकि हमें फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि ऑड फ्रीक्वेंसी वाले लेटर्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 1. इसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि वो पैलिंड्रोम बनेगा नहीं बनेगा. इसलिए इवन में अगर कोई आ रहा है तो दैट इज गोइंग टू नलीफाई, एंड इसलिए हमें हमेशा ऑफ एन की जो एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन थी एलसीए फिगर आउट करने की सारे पेयर्स के लिए, दैट इज गोइंग टू नॉट नीडेड हियर, बिकॉज हमें पूरा पाथ नहीं चाहिए. अगर पाथ चाहिए होता तो एलसी के अलावा और कोई तरीका नहीं होता. हाँ, हमें एलसी हमेशा निकालना पड़ता है हर पेयर के लिए, बट अभी सिर्फ फ्रीक्वेंसी से काम चल रहा है. एंड रूट को अगर ले भी लिया तो एडिशनल पाथ ऐड होगा, बट वो यू के रूट में भी होगा और वी के रूट में भी होगा, इसलिए वो डबल हो जाएगा, और डबल होने की वजह से वो इवन करेक्टर्स हो जाएंगे, उसका जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा. तो इसलिए वी डोंट हैव टू ऑलवेज कंप्यूट द एलसीए. वर्किंग फ्रॉम द रूट टू यू and from the root to v is also going to work. ठीक है, तो एक और चीज़, ये था थर्ड कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वॉज कैसे पता लगाएं कि स्ट्रिंग की रीअरेंजमेंट एक पैलिंड्रोम है. एट मोस्ट लेस देन इक्वल टू 1 ऑड फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स होने चाहिए. सेकेंड इज जब भी दो एजेस के बीच में पाथ चाहिए हम एलसी निकाल सकते हैं. तो थर्ड कॉन्सेप्ट इज नो नीड ऑफ एलसी फिगरिंग आउट हियर, बिकॉज रूट से भी पाथ चलेगा क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे और वो हो जाएंगे नलीफाइड. ठीक है, ये हो गए 3 कॉन्सेप्ट्स. अब और कॉन्सेप्ट चाहिए इसके अंदर. तो अब क्या है, हमारे जो फाइनल स्ट्रिंग है दैट कैन बी एन ऑड लेंथ पैलिंड्रोम और इट कैन बी एन इवन लेंथ पैलिंड्रोम. ठीक है, ऑब्वियसली वी नो दिस. तो इन दोनों को हमें अलग से हैंडल करना पड़ेगा. क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ. ऑड लेंथ पैलिंड्रोम एंड इवन लेंथ पैलिंड्रोम, अगर सारे स्ट्रिंग्स आ गए इवन नंबर ऑफ टाइम्स, सारे लेटर्स आ गए इवन नंबर ऑफ टाइम्स, लेट्स से ए सी सी, ए इज ऑल्सो इवन नंबर ऑफ टाइम 2, सी इज ऑल्सो इवन नंबर ऑफ टाइम 2, हम क्या कर सकते हैं, दिस इज एन इवन लेंथ पैलिंड्रोम बिकॉज दिस इज 4, बिकॉज even plus even is always even plus even is always even, this is 4. But odd length palindrome means अगर at least one odd frequency वाला letter आया, let's say B, this is always going to be a palindrome because the odd length frequency वाला is at most 1 less than equal to 1, but it is also 1, it is not 0. तो ये हो गया 5 साइज का which is odd length. तो even length palindrome कब बनेगा, when odd frequency वाला letter is 0, मतलब देर इज नो ऑड फ्रीक्वेंसी वाला लेटर, बट यहाँ पे देर इज 1 ऑड फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली 1 ऑड फ्रीक्वेंसी वाला लेटर. ठीक है, अब ये देखिए, अगर हमारे पास u है v है, इन दोनों का पाथ हमें पता है कहाँ से, रूट से, है ना. रूट से कैसे पाथ आएगा, नॉर्मल डीएफए से, बिकॉज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट. तो हमें आ जाएगा, एलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, u और v का पाथ आ जाएगा. ठीक है, जैसे 0 है ना. एक सेकेंड गाइस, क्या कर रही है, हाँ ठीक है. तो जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. ठीक है, इनके इनिशियल लेटर्स में लिख देती हूँ C A B C. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 का पाथ क्या है, कुछ नहीं है, एम्प्टी है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द स्टार्ट नोड. 1 का पाथ फ्रॉम द रूट इज C, 2 का पाथ फ्रॉम द रूट इज A, 3 का पाथ फ्रॉम द रूट इज CA,
4 का पाथ इज सी बी एंड इसका पाथ इज ए सी। ये कैसे आएगा? नॉर्मल डीएफएस से 0 से डीएफएस लगाएंगे चाइल्ड पे और अपेंड करते चलेंगे और ऐसे करके सबका पाथ आ जाएगा फ्रॉम द रूट। ठीक है, नाउ वी नीड इवन लेंथ और ऑड लेंथ। तो हमारे पास u का पाथ है फ्रॉम द रूट, v का पाथ है फ्रॉम द रूट। लेट से अब हम इवन और ऑड लेंथ में देखते हैं। लेट से पहले इवन देखते हैं। ठीक है, लेट से जो हमारा u का पाथ था 3 लेटर्स थे ए बी सी। ए आ रहा था 0 टाइम्स, बी आ रहा था 1 टाइम, सी आ रहा था 1 टाइम। कैसे हमारा फाइनल आंसर एक इवन लेंथ पैलिंड्रोम बन सकता है? क्या ऐसा वी लें, यू टू वी हम पेयर लें कि हमारा फाइनल आंसर एक इवन लेंथ पैलिंड्रोम बन जाए? इट विल ओनली फॉर्म इफ एंड ओनली इफ हमारा यू और वी एग्जैक्टली सेम हो जाए। लेट मी शो हाउ। यू एंड वी अगर हमारा एग्जैक्टली सेम हो जाए तभी बन सकता है, बिकॉज तभी one second guys, my free form is very glitchy। और गाइज इस क्वेश्चंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप अब तक देख चुके होंगे। मैं कितने सारे बैक टू बैक कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुकी हूँ। यस, सो यू और वी जब एग्जैक्टली सेम हो जाए तभी इवन बेस्ड बनेगा। तो कैसे मैं दिखाती हूँ। फाइनल शुड बी ऑलवेज दिस, फाइनल शुड ऑलवेज बी 0 0 0 0 0 0। कब आएगा? जब u और v इन दोनों के पाथ से बना है, मतलब इन दोनों को एंड होने वाला है। फाइनल इज द एंड ऑफ u एंड v। u और v का एंड कब होगा? 0 0 0 0 0 0 क्यों हो रहा है? बिकॉज इवन लेंथ पैलिंड्रोम्स में द काउंट ऑफ ऑड फ्रीक्वेंसी वाले लेटर्स ऑलवेज एग्जैक्टली 0, तभी तो वो इवन फ्रीक्वेंसी है। और जैसे ही 0 मतलब द काउंट्स विल ऑलवेज बी 0। नॉर्मलाइज कर दिया हमने, इफ इट इज 4 सो इट विल बी कन्वर्टेड टू 0। नॉर्मलाइज कर दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो इट हैज़ टू बी ऑलवेज 0 एंड देयरफॉर यहाँ पे जो ये फ्रीक्वेंसी वाला है ये अगर 0 1 1 होगा तभी आंसर ऑलवेज 0 आएगा। तो अगर हमारे पास u है एंड v है और हमें पता है कन्वर्टर मैप पे हमने स्टोर कर लिया है पाथ का काउंट। सो द पाथ हियर दिस इज द बिट मास 0 1 1 के काउंटेड 2। तो कितने पेयर बन सकते हैं? n से 2, क्योंकि कोई भी दो उठाओ वो पेयर पॉसिबल है। n क्या है? विच हैव द सेम पाथ। तो n यहाँ पे हो गया 2, 2c2 विच इज 1। ओनली वन पेयर इज पॉसिबल विच इज u to v। ठीक है, आई होप गाइज दिस वॉज clear। So this is for odd frequency। now let's do even frequency, sorry, let's do it for odd frequency। odd frequency मतलब जो final answer आ रहा है, let's say u and v, u was 0 0 1, it has to be either 0 0 1 or 0 1 0 or 1 0 0। these are only the 3 possible answers for odd frequency because at least exactly एक odd frequency वाले में exactly एक ऑड फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट होगा। तो या तो वो ये होगा या वो ये होगा या वो ये होगा। सॉरी, एग्जांपल के लिए मैंने सिर्फ 3 लिए हैं ए बी सी, बट एक्चुअल केस में हमें 26 लेने होंगे ए टू जी। ठीक है, तो 26 लेटर्स होंगे। तो एट ऑल 26 प्लेसेस वी विल डू अ लेफ्ट शिफ्ट ऑफ आई एंड दैट विल बी वन ऑफ द फाइनल आंसर्स टू फिगर आउट। बिकॉज u और v का एंड है फाइनल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो v की वैल्यू क्या आएगी? u का जोर, u का जोर विद फाइनल। क्यों? बिकॉज ये देखिए, अगर u वॉज 0 0 1, v क्या होगा जिससे फाइनल आंसर के 3 परम्यूटेशंस पॉसिबल है? 0 0 1 क्या होगा आप बताइए? 0 और 0 का जोर करेंगे आंसर 0, 0 और 0 का जोर करेंगे आंसर 0, 1 और 1 का जोर करेंगे आंसर 0। क्या इन दोनों का एंड ये होगा? यस होगा। तो जोर से आंसर आएगा। बिकॉज जोर से इसलिए आंसर आएगा क्योंकि ऑफ ऑपोजिट नंबर्स जोर इज ऑलवेज 1, सेम नंबर्स इज 0। तो इवन प्लस इवन 0 हो जाएंगे, ऑड प्लस ऑड नहीं रहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे 0 वॉज u वॉज 0 0 1 ओनली, v हमें फिगर आउट करना है। फाइनल हमें पता है कि लेट से दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल परम्यूटेशन, क्योंकि 1 कहीं भी आ सकता है, इट इज़ अ नॉट फ्रीक्वेंसी। अब हमें एक ऐसा u चाहिए। देखो, इसको हमें 1 मतलब ऑड फ्रीक्वेंसी है, 0 मतलब इवन है, 0 मतलब इवन है। हमें 0 लेके आना है, मतलब यहाँ पे एक ऑड पक्का आएगा। कैसे आएगा? 0 और 1 का जोर इज 1। लॉजिकली भी सोचेंगे तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? लॉजिकली सोचो, क्योंकि 1 ऑड फ्रीक्वेंसी बच रही है, इवन है, तो इवन प्लस ऑड होना चाहिए। तो ऑड यहाँ पे आने के लिए 1 आना चाहिए। अगर हम जोर भी कर रहे हैं 0 और 1 का जोर 1, तो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, 0 0 का जोर 0, तो दिस इज अ पॉसिबल v। तो v निकालने के लिए हम u और फाइनल का कर देंगे
जॉर, ठीक है, यू और फाइनल का जॉर कर देंगे और उसके बाद काउंट ऑफ यू इंटू काउंट ऑफ वी से हमें आंसर आ जाएगा। एंड उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम सिर्फ उन वाले पेयर्स को लेंगे वेयर यू इज लेस देन वी विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाए। क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी 2 बार कर चुकी हूँ खुद से सॉल्व, मैं आपको बस कोड दिखा देती हूँ बिकॉज आई हैव लेस टाइम, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। तो सबसे पहले बिकॉज दिस इज अ ट्री, मैंने एडजेसेंसी लिस्ट बना लिया। एडजेसेंसी लिस्ट वेक्टर ऑफ इंट आई से लेके पेरेंट ऑफ आई तक एज है और आई पेरेंट ऑफ आई से भी आई तक एज है, बिकॉज यहाँ पे हमने दोनों एजेस को कंसिडर कर लिया है बिकॉज इट इज़ अनडायरेक्टेड। तो हम एक विजिटेड भी रखनी होगी ताकि कोई इन्फिनाइट लूप में ना चला जाए। डीएफएस लगाएंगे, डीएफएस क्यों लगाएंगे, सिर्फ पॉपुलेट करने के लिए फॉर ऑल द पाथ्स फ्रॉम रूट टू नोड, ठीक है। तो ये जो बिट मास्क है ये हम ज़ीरो भी ले सकते हैं बिकॉज जो नोड है उसका कोई भी बिट मास्क नहीं है। बिट मास्क रिप्रेजेंट्स द पाथ। तो 0 0 एडजेसेंसी लिस्ट और एस हमने भेज दी है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, अनऑर्डर्ड मैप लिया है, विजिटेड रखिए, डीएफएस लगाया हमने, एडजेसेंसी लिस्ट, एस से हम करेक्टर लेके आएंगे। हमने विजिटेड 1 कर दिया है, मैप के अंदर डाल दिया कि वो पाथ आ चुका है अब तक। और अब हम नया पाथ बनाएंगे, कैसे न्यू पाथ बनाएंगे, जैसे 0 to 1 है तो सी को अपेंड करेंगे 1 के पाथ में, तो 1 को लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा ए टाइम्स और उसे हम बिटमास्क बना देंगे, ठीक है। और ऐसे करके हम डीएफएस बनाया हमने। उसके बाद काउंट पैलिंड्रोम्स के अंदर हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स और डीएफएस से पॉपुलेट कर लिया। क्या पॉपुलेट किया है हमने, अनऑर्डर्ड मैप पॉपुलेट किया जिससे हमें पता है कि हर पाथ की क्या फ्रीक्वेंसी है, 0 0 1 कितनी बार आ रहा है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ठीक है। वो पाथ कितनी बार रिपीट हो रहा है बिकॉज दैट विल बी रिक्वायर्ड इन द काउंट कैलकुलेशन। आंसर लिया हमने। दिस इज फॉर solely for even length palindromes nc2 which is n into n minus 1 by 2 हमने लाइन नंबर 53 पे कर दिया है साथ में। ये मैंने कमेंट किया, इसको कमेंट नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस आपको ये 2 हटाना पड़ेगा और आप वो लाइन नंबर 41 पे डाल सकते हैं। दिस इज ऑड लेंथ। 0 to 26 ऑड लेंथ में फाइनल आंसर में किसी कोई भी सेट हो सकती है बिट, तो वो हमने यहाँ पे सेट कर दी है। कैसे, लेफ्ट शिफ्ट करके। एंड जो अभी तक मैंने आपको इतना समझाया था कि फाइनल आंसर इज द एंड ऑफ करंट पाथ एंड वी, तो वी कैसे निकलेगा, फाइनल आंसर का जोर करके, ठीक है। तो मैप के अंदर अगर ये प्रेजेंट नहीं है वी विच इज़ द पाथ, आप कंटिन्यू करो, नहीं तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको क्यों मैंने डिवाइड किया 2 से, बिकॉज यू टू वी भी आ जाएगा, वी टू यू भी आ जाएगा, पर हमें स्ट्रिक्टली बोला है कि हमें यू टू वी वाला ही चाहिए, यू लेस देन वी वाला ही चाहिए, तो हमें डबल काउंटिंग नहीं करनी, उसके लिए हम डिवाइड बाई 2 करेंगे। दिस इज गोइंग टू वर्क। सो आई होप गाइज दिस वॉज हेल्पफुल, थैंक यू बाय। दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो जो कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पे बहुत सारे कवर किए थे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि दिस विल फॉर्म अ ग्राफ, ट्री कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एलसीए वाला कॉन्सेप्ट। द थर्ड कॉन्सेप्ट इज कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग को रीअरेंज करके बताएंगे कि उसमें पैलिंड्रोम है कि नहीं, बाय एटमोस्ट 1 ऑड फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट। उसके बाद डीएफएस से हम एलसीए का काम हटा देंगे क्योंकि हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमें एग्जैक्ट पाथ नहीं चाहिए। तो रूट वाला रिडेंडेंट हो जाएगा दोनों में, तो वैसे नलीफाई हो जाएगा, तो इसलिए हम रूट से लेंगे और रूट से निकालने के लिए हम डायरेक्ट डीएफएस लगा सकते हैं। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को बाइफर्केट कर दिया था, इवन लेंथ पैलिंड्रोम्स में, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम्स में। इवन का लेंथ आ जाएगा NC2 से एंड ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम का काउंट आ जाएगा जोर करके। तो आई होप गाइज दिस वॉज अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इट वॉज क्लियर। थैंक यू, बाय।